run my own operator finally, and from International College. Then I was with Sir, your Sir, Jessica Consultancy. Then after that, I was group of companies. So we do hear that very big advertisement out there. Many group of companies out there. So group make company. Then later on, I worked with Technica. Then Lupin Limited. Now I'm working with Single. Mostly I have experience in the manufacturing industry, pharma manufacturing, engineering manufacturing. Also I have experience in IT and IT services. So now Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. My name is Rahul Patel. I actually work along with Arjun sir in Northeast and Laboratories Limited. It's a pharmaceutical manufacturing company as such. So I had started my career into IT initially. I was more of a recruiter role in my initial days. But thereon I started on to work on various other functions of HR. Initially, I started my career with startups only. Just like you, I was a budding professional. I was exploring what the career is, best suited for me. And thereon, I got many opportunities to work on wearing multiple hats, working on various functions. And thereon, I just, later on joined Zim Laboratories. This is my first agency, you can say. And so far, I explored various things because we are a team of 5 members in our company. And in the leadership of Arpit sir for the HR, I got a hands-on experience on various functions and various aspects of HR that we will be discussing with you all because what happens is that we have two point of view, two perspectives whenever we are getting into interview process. One is from the candidate's perspective and another one is from the recruiter or the HR perspective. It is important for all of us to know, what are two viewpoints and what are their requirements and how we can actually put forward the things that we are having in order to fill the gaps that is there in our acumen, we can say. So we'll be discussing all of those things with you in this sessions. And in the main session, we also want that you all also share your inputs, your suggestions, what kind of challenges you are facing. Because बहुत सी बार होता क्या है कि we do know, like हम लोग बहुत सारे seminars करते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं YouTube पे, पर कोई ये नहीं बताता है कि हमारी जो gaps है, हमारी जो loopholes है, उसको किस तरीके से fill करना. वो कब तक नहीं पता चलेगा जब तक हम लोग नहीं बताएंगे कि भाई मुझे ये इशू आ रहा है. The person who is there as working as a trainer or who is going to deliver some session, वो तो generic terms में बात करेंगे. Definitely it's not possible for him to tell एक person को हर एक चीज़ specifically, but it's our responsibility as a person, as a trainee कि हम लोग सामने से जाके उनको बताएं कि sir I am facing this issue. Then only you will be getting the answers to questions that you have in your mind. ठीक है? So looking forward to work along with you in this 3 or 4, 5 sessions that we are going to have. And in the same time, I will suggest कि आप हर बार जो है notes बना के रखिए. Practice आपको रही रहेगी, है ना? और वो notes आखिरी में आप लोग रेफर करना कि हम लोग कहाँ start किए थे और आज हम लोग कहाँ end करते हैं. ठीक है? Yes, sir. Thank you so much. when we are going to do this, there are two things we need to understand. There is nothing as a boundary for this course material. Likewise, let's say if you are doing some BDCC course you are doing, for example. So for that purpose, there is a boundary. I am going to learn about it, right? Similarly, but here it's not like that. Here we are going to understand what your resume writing, your interviewing skills, or rather any other skills to get the job. But that is only not purpose we came here for. That is there. Of course, we are going to help you in that ways. Apart from that, we also want to groom you on certain skill sets that will help you to make your career good, right? So that is also our like a part of this training program. So please take it very seriously and participate. Don't hesitate yourself. Don't put yourself into a tension. अरे वो क्या कहेंगे? We are also normal people like you. Okay. Now you tell me which language you are more comfortable with. English, or Marathi English. English. Okay, fine. Okay, so that is no. So we are going to take that way. Yeah. So before we go ahead, just some questions to you, and then we'll start
This is over. Who is that? Here are the mix of what? Like you all are engineers? Okay. You all are engineers? Raise your hands. So 10 engineers we have. I mean they have done BE or BTech, right? They are BSc pass out. BSc computer science. What article? Yeah. Then ECE. BCCE. Same field. I also done the same course. Then MCA. Then MCA, 30%. MCA. Okay. And then what else? What else course are there? Who is there apart from this year? Polytechnic diploma. Sorry, I just forgot. Polytechnic diploma? I mean, you are B after that. So you should know. BCA person. BCA person. So here we have mixed students. So I believe it will be very fun. There is a lot of activities going on over here. So is there anything here? We are going to do this session that I would like to give you the idea and then we will go ahead. Today is more of a generic session. We are going to discuss the employer's expectation more of, and then Rahul will take over of one topic of our 5 topic. Okay. And then tomorrow onwards, there will be a 20-minute session we are going to have that is online. Okay. For next week, till next week. Wednesday, Rahul will going to come. He will take over for one session. Entire 1.5 hours session is going to take it. Next, 6 days, again 20-minute session for each day with each person will be there. Not that will not be for entire group. हर रोज एक या डेढ़ बंद करनी, एक या दो लोग काम करेंगे, ठीक है? उस doing that session, why we wanted to do? To give you a personal approach, personal touch. What will happen? You will personally go through one activity, one interview, mock interview, and what went well, what went wrong, and where you need to improve on. So that will be discussed there. So I think 30 plus people will be here, right? So you will have around 2 times this exercise will happen with you guys. Okay. Apart from that, things are there, assessment, assignments will be there that you need to complete. Okay? Hope you got this. Yes. Now, first, for doing any job, what is required? Skills. Huh? So, we require skills. Now, skills are divided into 2 parts. What is first one? Communication will park it in some time because technical skills. Who said technical? Very good. Okay. And then what is soft skills? Skills. That is behavioral skills. There is one more thing is required. What is that? Confidence. That comes in the behavioral skills. What do you think? What is the third thing is required to do a job? The personal interview is a process. I am asking for doing any job. What 3 things are required? One is technical skills, one is behavioral skills. What is the third skills do you think that it is required? That will come under skills, behavioral skills. What is the third thing? And that is a very important part. I have heard something and that is the right answer. No.
IQ will come in. Attitude. Why attitude is very important? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, पप्पा ने तो दोनों को कमा के दिया था। एक का एटीट्यूड सही था, एक का नहीं था। करेक्ट? Yes, sir. एटीट्यूड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है? यू कैन मेजर दिस। 100 में से कोई 80% टेक्निकली करेक्ट होगा, 90% होगा, या 100% भी सही हो सकता है, टेक्निकली एकदम इंटैक्ट हो सकता है। बिहेवियरल वाइज भी 70% हो सकता है, 5% हो सकता है। यू कैनॉट मेजर एटीट्यूड लाइक दैट। आइदर इट इज 0% or either it is 100%. Yes or no? Agree? Yes, sir. मुझे ये काम करना है, हाँ करना है। मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं करना। That's a part of it. ठीक है? You can train yourself on this. You can train on this also, but you cannot train on this. Agree? Yes, sir. For this, you have a wonderful trainer here. Yes, sir. Yes, sir. Prashant is taking care of that. Yes, sir. For behavior, I think Vishesh is also coming, and then other trainers also. Yes, sir. We are going to work on this. Okay? But I also would like to touch on this point. Okay? So psychologically also we are going to teach you certain things that will help you to become a good person. ठीक है? ये दोनों चीज आप कभी भी लाइफ में सीख सकते हैं। इसको ना बचपन से तुमको सीखना पड़ता है। हाउ एटीट्यूड बिकम बनता कैसा एटीट्यूड? हाउ यू डेवलप एटीट्यूड? Moreover, it comes from like many things, from your family, your childhood experience, your past experience, what you have earned, mostly on earning. एक थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है कब, जब तुम बहुत होशियार हो जाते हो। अरे अभी तो मैं तो क्या ही करने के लिए होता है ना ऐसा। So having that is not wrong. The right attitude should be there. Yeah? So that is how these three things are required for performing any job. Okay? Any question on this, guys? You should have a lot of questions. I'm expecting that. Yeah, please. सर थर्ड एटीट्यूड सराउंडिंग से भी आता है क्या? मतलब जैसे Yes. ऑफिस एरिया में Yes. For example, you are into a sales team. For example, you are working into a cement sales team. तुम अल्ट्राटेक का सीमेंट आ रहा है ना? Yes, yes. अल्ट्राटेक सीमेंट के सेल्स में हुआ, आपका मंथली टारगेट है 20 lakhs का सेल। यू डिड 21 lakhs का सेल हो गया, आज है 26 तारीख है आज। यू हैव 4 days in hand. तुम चाहो तो और ज़्यादा कर सकते हो, बट व्हाट यू डिड, मेरा तो टारगेट कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाई विल आई डू इट? एंड हु इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू? अदर पीपल। अरे तेरा तो हो गया है, तो भी शांत बैठ, हमको कर दे। होता है ऐसा? Yes, दैट इज sir. एन एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑल्सो। गॉट इट? Yes, sir. एनी अदर क्वेश्चन? बोलिए। सर एक हम अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर ले तो क्या हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है? Yes, of course. Mostly for this you need to have a lot of practice. You should first know yourself, and we are going to help you from that. Rahul is going to take one of our training, probably next Wednesday, या फिर next Wednesday वगैरह. That will tell you your real personality. ठीक है? आप as a
पर्सन कैसे हो, ठीक है। आप या फिर मैंने लेसन करो डिफरेंस नॉट येट डिसाइडेड हु इज गोइंग टू टेक दिस टॉप। सो देयर आउट ऑफ योर 9 टाइप ऑफ पर्सन, 9 टाइप ऑफ पर्सन, तो उसमें से आप कौन है और आपने क्या करना चाहिए, ठीक है। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। व्हाट एल्स? फॉर दिस यू कैन ट्रेन। हाउ? ट्रेनिंग लेके, बाय पुस्तक किताब पढ़ के, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे भी आते सीख सकते। एटीट्यूड इज लाइक यू नीड ए काउंसलिंग, यू नीड ए साइकोलॉजिस्ट, और यू इट कैन बी हील्ड बाय योर ओन। तुम खुद का भी एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। एक मैं छोटी चीज बताता हूँ। पहले मैं किसके बारे में कुछ तो सोचता था, ठीक है, मेरा मानना था कि ये चीज़ ऐसी ही है, और ये सब लोगों को करते हैं मेरा आगे, ठीक है। पर अभी वर्चू ऑफ एक्सपीरियंस और कुछ थॉट प्रोसेस के बाद मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ अभी ऐसी नहीं है, मेरी सोच गलत थी। पर मेरे आजू बाजू के लोगों को पता है कि मैं ऐसे ही सोचता हूँ। आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि मैं उनके सामने बोलूँ नहीं अभी मैं ऐसे सोचता हूँ। रादर सोसाइटी इज ऑल्सो, अपने आजू बाजू की सोसाइटी भी ऐसी है, अब तू तो ऐसे सोचता था यार, अभी तू तो ऐसे सोच रहा है, होता है। दैट इज ऑल कम्स अंडर एटीट्यूड। हाउ डू यू एक्सेप्ट आवरसेल्फ? हम हमारे, क्योंकि इंसान है, इंसान की सोच कभी भी चेंज हो सकती है। वह इंसान इज इंसान है ना, इंसान की सोच कभी भी सोच चेंज हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ रेफरेंसेस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स that gets changed and we have to like participate accordingly with the discussion। हम करते हैं ना, खुद से बातें करते हैं ना, बहुत बातें करेंगे तो क्या होगा? So we should know, we should have a right way of doing it, okay? So we discuss that part too। So this is our entire training program we are going to have, okay? Any question on this, yes? हमारा पूरा HR डिपार्टमेंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस, या दिस डिपार्टमेंट फॉर, देखिए कोई भी अपना इसका प्रोसेस होता है, इंटरव्यू प्रोसेस, या फिर उसके पहले आप देखिए हमें अगर कैंडिडेट भी चाहिए तो उसमें 2 चीज़ होता है। वी रिसीव वन रिक्वायरमेंट फॉर्म, दैट इज वी कॉल्ड इट एज पीपल रिक्वेजिशन फॉर्म, जिसमें हमें ये बताया जाता है either we need a replacement, either we need a new joiners, ठीक है। अगर आप ये छोड़ के जाएगा तो इसका रिप्लेसमेंट होता है, या यदि ये कैंडिडेट हमारे पास एक नया रिक्वायरमेंट है, नया स्किल्स है, उसके हिसाब से हमें कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। 2 ही तरीके से आदमी अंदर आएगा। देयर इज ओनली 2 रिक्वायरमेंट फॉर दैट रिक्रूटमेंट विल गोइंग टू हैपन इन कैंपस। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट टेक्निकल पैरामीटर लिखा जाएगा, तो क्या क्या आना चाहिए। उसके बाद उसमें बिहेवियरल पैरामीटर लिखा जाएगा, क्या क्या आना चाहिए। फिर उसके एटीट्यूड के बारे में लिखा जाएगा। यू कैन जज दिस, ये हमको जज करते ही नहीं, बट देन देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चन वी डू आस्क, इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है इससे, बट बहुत आइडिया नहीं सकता, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट PRF, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। वी नीडेड रिटन डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर हायरिंग मैनेजर कि भाई तुम्हें कैसे होना चाहिए बता दो। So ये चीज होता है। देन वी डू एन इंटरव्यू ऑल्सो। इंटरव्यू में भी 3 ही चीज चेक किया जाता है, टेक्निकल, बिहेवियर एंड देन एटीट्यूड, ठीक है। Why I am emphasizing on this 3? You cannot escape from this, ये तो आना ही चाहिए। अगर आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं हो रही, वो चीज़ होके मतलब नहीं, राइट। I cannot have a dummy person on that place, राइट। दूसरा स्किल्स नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं होता, साथ में इसके साथ स्किल्स भी होनी चाहिए, है ना। एंड थर्ड इज दैट, राइट। पूरा असेसमेंट इज डिपेंड ऑन दैट, पूरा असेसमेंट।
हमारा पूरा जो असेसमेंट होता है that we ask question and the question will be given. We get so many we ask you one question, what is our intention behind asking that question? Accordingly we have the parameters given. Hope you all got this. Yes, sir. Any question? You should have real time questions. Anyone has given interview anywhere? कहाँ दिया? टेक्निकल स्किल में 100% या 90%। देखिए क्या होता है एग्जाम फॉर एग्जाम्पल मुझे पीआरएफ में लिखा है कि मुझे ये पर्टिकुलर स्किल्स आना चाहिए, ठीक है। आपने इंटरव्यू दिया, ठीक है। आपको अगर 60% भी टेक्निकल स्किल आता होगा ना तो भी पीपल कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मैं 40% है, मैं उसको ट्रेन कर सकता हूँ, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू ट्रेन ऑन टेक्निकल पॉइंट। बिहेवियरली भी अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 50-60% भी अगर आपको आ गए तो भी उनको लगता है कि मैं ट्रेन कर दूँ, ये राइट होना चाहिए। तो वहाँ जाके आप ये नहीं बोल सकते कि अगर मुझे इतना सैलरी दोगे तो ये तुम यार जावा पे काम करो, एंड्रॉइड पे करना चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू सजेस्ट दैट। भेजिए और Yes, sir. ठीक है। ओके, Yes, so now you're done. Rahul, you're done with it. Shall we start there? Okay. So we'll start with the first session, okay? And then yeah, it's 1 o'clock now. Now you can take over. You all can turn around now. Interview process or the hiring process specifically before this. So you all had an interview earlier, right? How was your experience? Anyone? एक्सपीरियंस था वो भी अच्छा नहीं था। लाइक जो रेज्यूमे लिखा था उन्होंने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे, मैंने आंसर भी किया। मुझे ऐसे लगा कि मैं सेटिस्फाई कर पाया मेरे आंसर से, बट आफ्टर दैट जब रिजल्ट आया सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपने कभी फिर गैप फाइंड करने की कोशिश किया, लाइक व्हाट वाज दी यस मैंने फाइंड किया तो मैंने देखा कि मेरे को थिंग्स है क्लियर नहीं कर पा रहा था। जो चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करनी चाहिए थी प्रॉपरली, मैं वो चीज़ें क्लियर नहीं कर पा रहा था। शायद से वो मेरा बिल्कुल इसको क्या कहते हैं जो उन्होंने किया लास्ट में? रेट्रोस्पेक्ट करते हैं। कितने लोग करते हैं? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने इंटरव्यू किया और आप बाहर निकले और बाहर निकलते ही आपने मतलब पहले ये ना सोचा कि रिलैक्स करने चलना मैं सुनना चाहता हूँ, और ये सोचा कि बैठ के नोट करता हूँ कि भाई मैं कहाँ कहाँ जो है नहीं बोल पाया या क्या मैं बोल सकता था और मैंने नहीं बोला। कितने लोग ऐसा करते हैं? करते हैं, नोट करते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो चीज़ गलतियाँ हुई है उस पर से आप ध्यान रख के करते हैं। तो कितनों को फ्रूटफुल रिजल्ट मिला है? मतलब लगा है कि नहीं है जो लास्ट टाइम मैंने गलती की थी वो इस बार मैंने नहीं की थी। नई गलती हो सकती है बट पुरानी जो गलती की थी वो नहीं की मैंने। लगा है सर? तो यही चीज़ रहती है जो हमें ध्यान देना पड़ता है और इसी से हम लोग सीखते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहली बारी में आप हायरिंग प्रोसेस में जाएंगे, इंटरव्यू में बैठे आप और आपने सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो हायरिंग प्रोसेस इज नॉट जस्ट अबाउट द इंटरव्यू प्रोसेस। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन यही रहता है कि भाई हायरिंग की बात की मतलब इंटरव्यू कैसा गया उसकी बात करते हैं। इट ऑल स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हिच इज रेज्यूमे सबमिशन, ठीक है। अभी मैं रेज्यूमे सबमिशन की बात करता हूँ। आप लोगों को मुझे पता है जितना यूट्यूब से या फिर बाकी देखने से नॉलेज मिला होगा क्या होता है रेज्यूमे सबमिशन में, क्या होता है। Okay, it tells about the candidate to the hiring manager. अच्छा, okay. No, just start with the very basic thing, very fundamental part. Resume submission में सबसे fundamental चीज़ क्या रहेगी? हमारा नाम और Requirements क्या है उसमें, ठीक है। क्या किया है, एजुकेशन, हॉबीज एंड ऑल। ठीक है। So basically you need to say first आप resume writing की बात कर रहे हो, ठीक है चलिए, that is also good thing. And इसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है कि
रेज्यूमे मैंने एकदम बढ़िया अच्छा सा फैंसी बना दिया, सारी अच्छी डिज़ाइन करा दी, सब कुछ कर दिया। नाउ इट्स पॉइंट कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे मुझे मेरा रेज्यूमे ड्रॉप करना है, उसके बारे में कितने लोग सोचते हैं? अच्छा, क्या सोचते हो आप लोग इसके बारे में? सर जहाँ पे जो स्किल रिक्वायर्ड है हाँ उसके अकॉर्डिंगली हमको वो रिज्यूमे में डालना है। नहीं, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट आई एम आस्किंग कि आपको रेज्यूमे ड्रॉप करना है। ड्रॉप करना मतलब क्या होगा? कहाँ पे अप्लाई करना है, वेयर टू अप्लाई, कितने लोग उसके बारे में सोचते हैं? आई एम थिंकिंग कि मोस्ट ऑफ यू आर फ्रेशर एंड आप लोगों के पास, चलो इट इज फॉर बोथ लैटरल हायरिंग एज वेल एज फ्रेशर हायरिंग, ठीक है? तो रेज्यूमे जब ड्रॉप की बात करता हूँ, वेयर टू अप्लाई क्वेश्चन होता है। अब वेयर टू अप्लाई में कितने ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास? चैनल्स कौन कौन से रहते हैं? लिंक्डइन है, वन बाय वन, ठीक है? सबसे बेसिक पहला वॉक-इन है ना। वॉक-इन में 2 टाइप के रहते हैं, एक रहता है फ्रेशर और एक रहता है लैटरल। फ्रेशर के लिए जैसे आप लोगों को पता है वो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो कैरी कराता है, राइट? तो आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलता है? मेल से मिलता है, सोशल मीडिया से मिलता है, और फ्रेंड से मिलता है, कलीग से मिलता है ना, एलुमनाई से मिलता है, कॉलेज से मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको पहले पता रहने चाहिए, ठीक है? वो गया फ्रेशर का हमारा, ओके। उसके बाद लैटरल रहता है। लैटरल हायरिंग क्या होता है? जो एक्सपीरियंस रहते हैं, राइट, उनके लिए भी वॉक इन होता है, राइट? तो उसका नॉलेज भी हमें पता रहना चाहिए, कहाँ कहाँ पे बिल्कुल जॉब पोस्ट हो रहा है ना, कहाँ पे जॉब पोस्टिंग हो रही है, राइट? तो वो सारे वॉक-इन्स की जो भी सोर्सेज है हमें पता रहने चाहिए, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज वॉक-इन। उसके बाद क्या रहता है? और ऑप्शन कौन से होंगे? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या क्या होता है? सबसे प्रोमिनेंट है प्रोफेशनल्स के लिए क्या? लिंक्डइन। कितने लोग एक्टिव है लिंक्डइन में? सारे, दैट्स ग्रेट। अब एक्टिव है मतलब ये नहीं कि आपने आईडी क्रिएट कर दिया, अकाउंट क्रिएट कर दिया। पोस्टिंग रेगुलरली कितने लोग करते हैं? दैट्स नाइस। किस टाइप की पोस्टिंग करते हैं आप लोग? जो न्यू स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सीखी है, वो हम पोस्टिंग करते हैं रेगुलर। अच्छा, ओके, नॉट अबाउट दैट। जैसे कि आप लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, टेक्निकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, तो आईटी ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, है ना, उससे रिलेवेंट चीज़ें कितने लोग डालते हैं, पोस्ट करते हैं? आपने कोई नया कुछ काम किया, नए प्रोजेक्ट पे काम किया, है ना, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या लेसन आपने सीखे, राइट? उसके बारे में कितने लोग पोस्ट करते हैं? नहीं? तो आप लोग कैसे नजर में आओगे HR के, हायरिंग मैनेजर्स के? सी दिस सीम्स टू बी अ बिट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग। हम लोगों को स्टेप बैक हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार मैं क्या डालूँ यार, फिर लोग क्या सोचेंगे, मैं कहाँ से डालूँ, क्या डालूँ? मैं बता दूँ मैंने क्या किया था। इनिशियली व्हेन आई वाज वर्किंग विद स्टार्टअप, माय मैनेजर सिंपली टोल्ड मी, राहुल हफ्ते में मुझे तेरा एक लिंक्डइन का पोस्ट चाहिए। एंड आई वाज क्यूरियस कि मैं क्या डालूँ यार, मैं स्टार्ट किया हूँ, मुझे पता नहीं डालना क्या। तो उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था, तो मैं देख रहा था कि लोग किस किस टॉपिक पे डाल रहे हैं, ले ऑफ पे डाल रहे हैं, है ना, IT स्किल्स पे डाल रहे हैं, अपस्किलिंग पे डाल रहे हैं। तो उस पर से मैं मेरी कंपनी को छोड़ के क्या डाल सकता हूँ, है ना? हम लोग एज अ कंपनी, मैं तो HR, तो मुझे कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, राइट? तो मैंने क्या किया, वहाँ से अब ले ऑफ के ऊपर चल रहा था, तो हाउ वी आर अवॉइडिंग द सिनेरियो ऑफ ले ऑफ इन आवर कंपनी, मैंने उस पर से एक पोस्ट डाला। सो ये चीज़ हमें भी सोचना है, आई मीन एज एन इंडिविजुअल, कि मैं जो टेक्निकल स्किल्स इक्विप कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं चीज़ सीख रहा हूँ, उसका मार्केट में क्या रेलेवेंस है, मैं क्या वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ बाय अपस्किलिंग दोस थिंग्स या फिर बाय लर्निंग दोस थिंग्स। आप जब ये चीज़ लिंक्डइन में डालते हो तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफाइल नजर में आ जाता है किनके? हायरिंग मैनेजर्स के या फिर HRs के, ठीक है? दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोर्स सोशल मीडिया में लिंक्डइन, दैट यू ऑल शुड बी देयर। एंड आपको एक्टिव रहना होता है। एक्टिव इन मीन्स अकाउंट क्रिएट करके नहीं, बट पोस्ट करना है रेगुलर बेसिस पर। आप एक अपने लिए बना लीजिए, कैलेंडर बना लीजिए, महीने में एक बार मैं ये पोस्ट डालूंगा जो भी मैं सीख रहा हूँ, ठीक है? आप देखिए लोग किस बारे में डाल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या अपने व्यू पॉइंट्स डाल सकते हो। अभी तो मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी, आप सब यूज़ करते होंगे ChatGPT, राइट? अपने वर्ड्स वहाँ पर डालो, ChatGPT को समराइज फॉर्म में दे दो। इनिशियली मैं बता रहा हूँ, बाद में इसको प्रैक्टिस नहीं बनाना है, बट वो वहाँ से आप डाल के कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। हमें अभी फिलहाल सिर्फ नज़र में आना है लोगों को, ठीक है? तो दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट क्या है, जहाँ से आप मतलब लिंक्डइन में बेसिकली देखिए कनेक्ट करना है, नेटवर्क बनाना है, फिर रेज्यूमे ड्रॉप करना है, ठीक है? ये चीज़ आपको करनी है सबको, ठीक है? तभी आप हाईलाइट होंगे। और मैंने पोस्टिंग का भी बताया। फिर और एक कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए? रेफरेंसेस, है ना? अभी रेफरेंसेस फिजिकल रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, ऑनलाइन रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके पीयर्स हो सकते हैं, ठीक है? उनके साथ नेटवर्क बिल्ड करो, ठीक है? आप जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, अगर आपके कलीग तो कोई सीनियर एलुमनाई वो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो उनके साथ मिलो,
मेरा छोटा भाई है, ही इज राइट नाउ गोइंग टू परस्यू पीसीए, ओके। वो बेसिकली क्या करता है, उसके जो सीनियर्स हैं राइट, उनसे जाके मिलके वो लोग लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, वो भी मार्केट में उतर गए, तो उनके साथ मिलता है। मैंने उसको यही बताया कि शर्म नहीं रखने का, या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे, बट नेटवर्क आपको बनाना है राइट। बिकॉज वही रेफरेंसेस फिर आपका काम देखेंगे वो लोग, आपका काम देखेंगे वो लोग, आपको रेफर करेंगे कहीं पे, बिकॉज ही रेफरेंसेस इज द ओनली ट्रस्ट वर्दी सोर्स, सबसे क्रेडिबल सोर्स है। वॉक इन पे भी एकदम से किसी को भरोसा नहीं है, बट अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूँ तो जिसको मैं रेफर कर रहा हूँ उसको लगेगा नहीं राहुल रेफर कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज देयर, सम वैल्यू एडिशन विल बी देयर। So you need to build good networks, you need to have good references, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज रेफरेंसेस। इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन रहेगा? कैंपस रिक्रूटमेंट, राइट, ठीक है। और क्या रह सकता है? कंसल्टेंट्स, कितने लोग कंसल्टेंट के टच में रहते हैं? रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी आप, राइट, कितने लोग? सी रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी भी बहुत सी बार आपको हेल्प कराती है, ठीक है। these days मैं मार्केट में देख रहा हूँ कि ये आपको पे सर्टन अमाउंट एंड ओनली आपको इंटरव्यू कॉल्स देंगे, पैसे के पीछे जाने ही, ठीक है। सिंपली जो आपको एकदम रिनाउंड कंसल्टेंसी, थोड़ा सा सर्च करो गूगल में कि कौन सी नागपुर में रिनाउंड कंसल्टेंसी है, नागपुर के बाहर भी कौन सी रिनाउंड कंसल्टेंसी है, उनके साथ आप अपना रेज्यूम शेयर करो, उनको बताओ दैट आई वांट टू अप्लाई फॉर यू नो दिस, ये मेरी टेक्नोलॉजी मैंने सीखी है, ये पोजीशंस के लिए मैं देख रहा हूँ, उनको बताओ, ठीक है। फिर वो जब भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो उनके पास एक डेटाबेस रहता है मेंटेन, तो वहाँ से वो लोग आपको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो वेंडर या फिर रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी के साथ आपके रेज्यूम होने चाहिए, राइट। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस देखे हैं जो कि हमें रेज्यूमे सबमिशन के टाइम पे वेयर टू अप्लाई का क्वेश्चन जो आता है हमारे दिमाग में, उसको आंसर करते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अभी एक और चीज़, अब हम लोग रिक्रूटर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइट। तो हमारे लिए रेज्यूमे सबमिशन जब होता है तो इट्स काइंड ऑफ टिंडर प्रोफाइल जैसा रहता है। कैसे? सही नहीं लगा तो स्वाइप लेफ्ट, सही लगा तो स्वाइप राइट। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज शॉर्टलिस्टिंग, ठीक है। शॉर्टलिस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? कोई बता रहा था इसमें से यूएसपी कीवर्ड्स, कौन होता है आपका नाम? हाँ, नमस्कार, ओके। तो क्या होता है नमस्कार शॉर्टलिस्टिंग में? एक्चुअली आपने वो यूनिक स्पेशलिटी है, वो एक्चुअली वो होता है कि रिज्यूमे सेंड करना है सेलिंग योरसेल्फ, ओके, तो आपकी यूएसपी उसमें देखना चाहिए। देखने चाहिए। यू विल से कीवर्ड्स, कितने लोगों ने एटीएस के बारे में सुना है? हाँ, it क्या होता है एटीएस? उसका एक एल्गोरिथम रहता है, सबको पता है ना। अब एटीएस क्या करता है कि आपके जो रेज्यूमे में कीवर्ड्स है, आपने जिस तरीके से आपको वहाँ पे प्रेजेंट किया है, राइट, वो कीवर्ड्स को जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करता है। सिंपल, वो सिस्टम क्या करेगा? मैच करेगा, उसको बोलते हैं रेज्यूमे पार्सिंग। हमारे एटीएस में एक वर्ड रहता है रेज्यूमे पार्सिंग करके, इट बेसिकली कैचेस द कीवर्ड्स दैट द जॉब डिस्क्रिप्शन इज ट्राइंग टू से। अब अगर मैं देख रहा हूँ जावा में एक्सपर्ट वाला और आपने मेंशन किया पाइथन एज माय एक्सपर्टीज स्किल, ठीक है, तो वो बात नहीं करेगा। सबसे पहले आपके एक्सपर्टीज में, स्किल्स में सबसे पहले क्या होना चाहिए? पाइथन होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड टेक्निकल नॉलेज है। साथ ही में आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे भी वो वर्ड आना चाहिए पाइथन, ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पाइथन, ये सारे कीवर्ड्स है ना। अगर आप यूनिट टेस्टिंग कर रहे हो, जो कुछ भी है टेक्निकल पार्ट जो आप लोगों ने किया है या फिर आपको आता है और आप चाहते हो कि मुझे उस टाइप की जॉब चाहिए, तो आपको वो अपने रेज्यूमे में मेंशन करना पड़ेगा। आप लोग मत मेंशन करो कि मेरे की अचीवमेंट्स कितने सारे हैं, वो है ये कॉलेज का क्रिकेट, कुछ नहीं। मेन आपका जो है आपके कीवर्ड्स एकदम रिलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको नोट डाउन करना है कि एटीएस फ्रेंडली रेज्यूम बनाना है हमें। इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेपरेट सेशन, रेज्यूमे राइटिंग, ठीक है। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि रेज्यूमे राइटिंग में हमें क्या करना है, किस चीज़ों को ध्यान देना है, बट दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू ऑल नीड टू चेक, ओके। इस पर किसी को कोई डाउट है शॉर्टलिस्टिंग पे? कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि यार मतलब कॉन्फिडेंटली हमने अप्लाई कर दिया और लगा कि मुझे इंटरव्यू कॉल आएगा और उसके बाद वेट ही करते रहेंगे? कितनों के साथ ऐसा हुआ है? हालांकि आपके फ्रेंड्स को या फिर पीयर्स को कॉल आया होगा, से फॉर एग्जाम्पल आप लोग एज अ फ्रेशर ही अप्लाई करते हो, बट आपने उन्होंने सेम क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन, आप लोगों ने इंटर्नशिप सेम की है, प्रोजेक्ट्स अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बट उसका रेज्यूमे सिलेक्ट हुआ और आपका नहीं हुआ। कितनी बार ऐसे किसी के साथ हुआ है? नहीं हुआ, ठीक है। सी ऐसा भी होता है, इसका मेन कारण ये है कि आप लोग जो है एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे नहीं बनाते, ठीक है। कीवर्ड्स हैज टू बी वेरी मच रिलेवेंट। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट और रिटन एग्जाम। अब सी
जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग जब एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर जहाँ पे बल्क हायरिंग होती है वहाँ पे दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट इंटरव्यू फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट. दे हैव अ स्क्रीनिंग प्रोसेस, राइट? द स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट और द रिटन एग्जाम. एप्टीट्यूड टेस्ट कितने लोगों ने दिया था? आप सबने दिया ही होगा, राइट? हम लोग लेवल सी देते आ रहे हैं, CTN और GW नॉट, राइट? So aptitude test is very much crucial. It's one of the part of the hiring process which basically screens out or filters out the irrelevant. अब aptitude आप लोगों को पता है कौन सी skills check करते हैं बोलो? Right? Basic, logical reasoning, quantitative skills. ठीक है? या तो फिर आपके subject से related कुछ test हो सकता है ना? और उसमें कुछ verbal part, abstract part, ये सारी चीज़ें रहती है. तो आप लोग timely basis पे ये चीज़ prepare करते नहीं करते हैं? कितने लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं आप? करते हैं? That's great. See, you have to be very much in practice with these things. क्यों? Because आप लोग को नहीं पता कि कौन सी कंपनी की एप्टीट्यूड टेस्ट करेगी, कैरी आउट करेगी और आप लोग उसमें पास ना हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. रेगुलरली बेसिस पे आपको एटलीस्ट वंस इन अ वीक एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है. मैं भी मतलब कि HR मेंटर्स की जो बुक्स है आज तक मैंने मेरे पास रखा है. क्यों रखा है मैंने? बिकॉज आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस नहीं रहती है ना. अगर आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी अलग अलग क्वांटिटेटिव पार्ट पर, LR पार्ट पर क्या क्या सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, टॉपिक्स चल रहे हैं ना, तो आप लोगों को भी इजीली रहेगा. जब भी आपको किसी कंपनी में अप्लाई करना है और एप्टीट्यूड टेस्ट देना तो आप लोग कभी घबराओगे नहीं. बहुत से लोग थोड़े से घबरा जाते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, अरे यार रिटन एग्जाम रहेगा, तो वहाँ पे हमें घबराएंगे कभी जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे. तो ये चीज़ आपको करना है. आप लोगों के पास भी आपका कॉलेज डेज की जो एप्टीट्यूड की जो भी बुक्स रहेंगे वो रखना है आपको, ठीक है? रिटन एग्जाम में आप लोग जो भी टेक्निकल स्किल जो काम करते हैं, है ना, सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा वो चीज़, तो उसका भी आप लोगों को प्रैक्टिस रहना चाहिए. मेरे हिसाब से हैकर रैंक, एक्सपर्ट करके कुछ तो वेबसाइट्स है ना. मैं जब पहले IT में काम करता था मुझे पता है, तो हमारी कंपनी के उस टाइम पे भी जो एम्प्लॉइज थे स्टार्टअप में काम करते थे, बट वो लोग ये सब सारे हैकेथॉन ये सब चैलेंज वो लोग पार्ट लेते थे. तब भी लेते थे. क्यों लेते थे? बिकॉज वो आपको रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में जो आते हैं कंपनीज के, आप लोगों को पता ही होगा आजकल हैकेथॉन इतना ज़्यादा फेमस हो गया है कि कंपनी डायरेक्ट कैंपस में आती है और वहाँ पे वो इवेंट्स कैरी आउट करती है जो कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे रहते हैं. जो बंदा उस पर क्रैक कर लेता है उसको पहले प्री प्लेसमेंट ऑफर कर देती है. कहती है कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करो फिर आप हमें जॉब कर लेना. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए भी रहेगी, बट आपको रेगुलर प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी. तो ये सारी जो अलग अलग वेबसाइट्स है आप लोगों को बेहतर पता होगा, तो आप ये सारी टेक्निकल चीज़ें सीखने मिलती है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करते रहना. ठीक है? उसके बाद क्या रहेगा? साइकोमेट्रिक टेस्ट. सुना आप लोगों ने इसके बारे में कभी? नहीं. देखिए आज जो हम लोग जैसे कहा कि बिहेवियरल स्किल्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट विच ऑल ऑफ द IT प्रोफेशनल्स आर मिसिंग दीस डेज. साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या रहता है? पर्सनैलिटी, आपके ट्रेड्स, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना, आपका बिहेवियर पार्ट, ये सारी चीज़ें चेक होती है. ये आजकल इतना ज़्यादा क्रूशियल हो गया कंपनियों के लिए, बिकॉज टेक्निकल पार्ट तो हर किसी को मिल जाता है, बट अगर मान के चलिए किसी के पास टेक्निकल से इतनी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो बंदा ही अप्रूव है, तो कोई रखेगा इसे बंदे को अपनी टीम में? नहीं रखेगा. कोई किसी में मतलब है कि मतलब सेल्फ सेंटर्ड है बहुत, राइट? आप मुझे पूछो मैं करके दूंगा, बट मुझे सबको पूछना चाहिए, सब मुझे पूछनी चाहिए कि किस तरीके से करना है, क्या करना है, बात मेरे पास आना चाहिए. ये सारी अपनी पर्सनैलिटी दिखाती है. अगर आप कोलैबोरेटिव वे में काम नहीं कर सकते हो, आप टीम वर्क में काम नहीं कर सकते हो, राइट, तो आपको कोई लेगा नहीं, राइट? सो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? कभी सुना आप लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? करेक्ट. आप कैसे आपके इमोशंस, जिसमें कि आपके इमोशंस को समझना, मैनेज करना और शो करना, साथ ही में आप आपके सामने जो दूसरा पर्सन है उसकी इमोशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, वो होता है इमोशनल इंटेलिजेंस. ये कॉर्पोरेट में आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, बिकॉज लोग छोटी छोटी बात में चढ़ जाते हैं. पीपल आर सो मच फ्रस्ट्रेटेड दीज डेज ड्यू टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल इशूज कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसी को नहीं पता. अपना फ्रस्ट्रेशन बॉस भी निकालता है और बॉस निकालने के बाद जो पर्सन है वो अपने सबॉर्डिनेट पे निकालता है. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. तो इसके लिए कंपनियां साइकोमेट्रिक टेस्ट लेती है, पहले से ही लेती है. तो वो टेस्ट भी हम लोग आप लोगों के साथ करेंगे. इमोशनल क्वेश्चन और एनिग्राम टेस्ट हम लोग कहते हैं उसको. तो वो टेस्ट भी आपको बताएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है ना, और किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी जो आप लोग देख रहे हो उसको मैच करती है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो कंपनियां ये टेस्ट भी करवाती है, तो इसका भी प्रैक्टिस आप लोगों को होना चाहिए. एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए. सी इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट में कुछ सही है गलत नहीं रहता है. ठीक है? आप लोगों को जब ये टेस्ट देना है तब ये नहीं सोचना है कि मतलब वो कंपनी क्या चाहती है. आप जो है आपको वो वहाँ पे मेंशन करना है ना. इससे आपको आपके पर्सनैलिटी में जो भी कमियाँ हैं वो पता चलेगी और उसमें से आपको बाद में फिर वर्कआउट करना है. ठीक है? तो साइकोमेट्रिक टेस्ट एक रहेगा.
ज़्यादा लोग नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन। जीडी कितने लोगों ने जीडी किया आज तक? प्रॉपर आपको मतलब कॉलेज में नहीं कह रहा हूँ मैं, कैंपस में या फिर कैंपस में, राइट? तो किस टाइप के टॉपिक्स रहते हैं जीडी में? करंट अफेयर से रिलेटेड, बट मोस्ट रिलेवेंट रहते हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में जाने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत कॉमन एक टॉपिक चल रहा है कि एआई का क्या इम्पैक्ट रहेगा जॉब में, राइट? तो इस टाइप के टॉपिक्स, इससे क्या पता चलता है कि आप लोग कितने ज़्यादा नोन हो इन सारे टॉपिक्स को लेके, है ना? तो आप लोगों को एटलीस्ट जो इंडस्ट्री में चल रही है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग बेसिकली सीधा गूगल में भी सर्च कर सकते हो ट्रेंडिंग जीडी टॉपिक्स, ठीक है? और उस पर से आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। मेरा तो बेटर सजेशन रहेगा कि आप लोग जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप लोग जीडी के टॉपिक्स प्रिपेयर करके ही जाओ, ठीक है? हम लोग एक प्रॉपर पूरा सेशन रखने वाले हैं जीडी पर, और उस पर से हम लोग एक लाइव ट्रेनिंग प्रैक्टिस भी करेंगे कि किस तरीके से जीडी का राउंड कंडक्ट होता है, किस तरीके से हमको खुद को प्रेजेंट करना है, क्या जेस्चर, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रूशियल पार्ट ऑफ द हायरिंग प्रोसेस, ठीक है? नेक्स्ट इज फाइनल पर्सनल इंटरव्यू, है ना? सीधा लोग सोचते हैं रेज्यूमे सबमिट कर दिया, मैं एकदम पर्सनल इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल आना चाहिए। लगता है ऐसा होता है कि सबके साथ नहीं होता है। ये सारी प्रोसेस रहती है, इसमें बहुत सारी बीच में स्टेप्स रहती है जो हमें क्रॉस करनी करती है, और उसके बाद हमारा जो है इंटरव्यू का राउंड आता है। नाउ पर्सनल इंटरव्यू इज द ओनली राउंड वेयर यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू सेल योरसेल्फ, है ना? अब जहाँ पे सेल करने के बाद ही तो आपको हम लोग बताने वाले हैं कि किस तरीके से सेल करना है, बट सबसे पहले मुझे कोई ये बताएगा कि किस तरीके से आप लोग पर्सनल इंटरव्यू को डील करते हो। एनीवन? सबसे लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्सनल इंटरव्यू? क्या नाम है आपका? गौरव। बताइए गौरव। जैसे हम इंटरव्यू देने गए तो अपना पहले अपना बिजनेस प्रोडक्ट टीम होना चाहिए। बताओ यार, खुल के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग यार। आप सब अभी बस इंडस्ट्री में जंप कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, पहला स्टेप डाल रहे हो, आपको नहीं पता तभी तो ये सेशन करवा रहे हैं अपन, है ना? व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? इट कैन बी अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीटली फाइन, बट यू हैव टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। क्या लगता है आपको पर्सनल इंटरव्यू? एनीवन एल्स वांट टू ट्राई? कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, मतलब किस तरीके से प्रॉपर होना चाहिए? हमारे अगर किसी भी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सामने वाला, और हमें उसका आंसर प्रॉपरली देना चाहिए ताकि सामने वाले को वो समझ जाए। एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए उनका कहना है। साथ ही में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज वो क्या सुनना चाहता है और हम क्या बता रहे हैं, राइट? इंटरव्यू में मेन वही होता है, वो पूछ कुछ और रहता है और बता कुछ और रहता है। यू नॉट आपने में वर्ड सुनाऊंगा, सेंटेंस सुनाऊंगा, बीटिंग अराउंड द बुश, है ना? वो नहीं करना है। वो क्या पूछ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। एक पॉइंट दिया, उसका रीजन दिया, वापस पॉइंट दिया, ये तरीका होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन पर्सनल इंटरव्यू। एक पूरा इंटरव्यू टेक्निक जो हम लोग बता रहे हैं, उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और साथ ही में आपको आपके लिए सबके लिए होमवर्क है कि आपको जो भी चैलेंज आए सारी हायरिंग प्रोसेस में, वो आपको नोट करके रखना है, क्लास में पूछने हैं, सो दैट वी कैन आंसर दोज थिंग्स एंड आपको भी वो सारी चीज़ों के आंसर सोल्यूशंस मिलें, ठीक है? यहाँ से किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है सो फार? किसी के कोई इनपुट सजेशन वो लोग चाहते हैं कि सर आप ये भी हो सके तो कोशिश करिएगा कवर करने के लिए इशू में। HR से that will be there. That will be there when I said, you know, that 20 minutes we are going to do it. So why we want to have one person or two person at one time, so that we can able to give you personal, you know, touch on that. We will going to ask you a question, then you have to answer it. After 10 minutes of your assessment, we will tell you what went well, what went wrong, where you need to improve upon, right? So that is how things will work. ठीक है, सो एनी क्वेश्चन, एनी अदर सजेशन फ्रॉम यू गाइस? तो रिप्रेजेंट बेसिकली डिस्ट्रिक्ट साउंड लाइक हम कभी भी बोला जाता है, तो उस टाइम को ओवरकम कैसे करें और आगे वाले कॉन्फिडेंट की बात कैसे करें, तो यूजर कैसे करें, उनको सेल करना है, तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कैसे करेंगे? करेक्ट। सी मैंने भी मतलब जब मैं IT में काम करता था तो टेक्निकली बंदा इतना साउंड रहता है, बट जब क्लाइंट के साथ बिजनेस फील रहता है ना, तो मेरे हिसाब से आप लोग प्रोजेक्ट पे जो स्टेटस है डिस्कस करते हो, वो बंदा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तो उसका मूल कारण क्या है, राइट? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट? तो वो लोग वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आप लोगों में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि दैट यू ऑल नीड टू हैव अ गुड काइंड ऑफ रीडिंग हैबिट,
प्लस आप लोगों को कंटिन्यूस बेसिस पे इंटरेक्ट करना है, हो सके तो आप लोग इंग्लिश में एक दूसरे से बात करो, ठीक है, नॉर्मलाइज हमें ही करना है, ठीक है। इसमें I would like to add into that. When we talk about I get nervous or rather I look demotivated, best friend is having a good book. You should just not read your curriculum related book. You should read that. That is how I will say. But apart from that, you should have habit to read things which is really not related to your personal part. I mean, your professional part, subject part. So, I believe in 20 minutes every day, we should read about our career part. जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हो 20 मिनट पढ़ना ही है। जैसे हम खाना खाते हैं 2 टाइम, वैसे मुझे पढ़ना है 3 मिनट, ये हैबिट बना। सिमिलरली 20 मिनट्स not related to your career. Why? That will give you more confidence. If you know many things, and books will tell you best instead of Instagram and WhatsApp. रील में बहुत टाइम वेस्ट होता है। एक आप देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट यू शुड रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, मुझे 20 मिनट पढ़ना है। यदि आपने ऐसा हैबिट बनाया था तो आपको खुद को समझना पड़ेगा। एक 15 दिन ही करके देखो, 16वें दिन में आपको समझ में आ जाएगा। यू हैव अर्न टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो, विद दैट सेल्फ मोटिवेटेड ऑल्सो फील। अभी मुझे क्या पढ़ना चाहिए जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे कौन सी भाषा में पढ़ना चाहिए जो मुझे समझती है। आई विल नेवर से कि तुम अंग्रेजी ही पढ़ो। हाँ, जो आपको करियर का है पार्ट उनको अंग्रेजी ही पढ़ना पड़ेगा, एवरीथिंग इज नॉट इन इंग्लिश। बट हिंदी, मराठी और एनी अदर लैंग्वेज दैट यू हैव, वो भी पढ़ो, ठीक है। इट विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। रीडिंग इज ओनली अ टेक्निक, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। हम जितना भी यहाँ पे बदबद करें, बट अगर आपके पास कॉन्टेंट नहीं रहेगा ना, बात नहीं कर पाओगे। कॉन्टेंट विल कम फ्रॉम गॉट इट। हम जितना अभी बात कर सकते हैं, मैं वहाँ पे विदाउट पीपीटी फिर मैंने थोड़ा सा पीपीटी बनाया, राहुल इज टॉकिंग टू यू। इट्स जस्ट नॉट ओनली थ्रू आवर सब्जेक्ट, वी ऑल्सो लर्न टू नॉन सब्जेक्ट, वो भी हम करते हैं। आपकी प्रैक्टिस डालिए 20 मिनट सब्जेक्ट का, 20 बिना सब्जेक्ट का, बट मैं रोज पढ़ूँगा। 40 मिनट्स खुद को दीजिए, यू विल फाइंड अ वंडरफुल शिफ्ट इन योर पर्सनैलिटी। गॉट इट? Will you going to give me a promise from today till completion of this class? You're going to read at least 2 books. हाँ? अच्छी 2 किताबें निकालिएगा। It's just not motivational, not motivational, जो अच्छा लगता है। You like उपन्यास, कादम्बरी, बट थोड़ा मीनिंगफुल पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए जो नहीं तो आप सिर्फ ऊपरी शो पढ़ रहे हैं। If you want to do a career into that, that's fine. But they also have that is also good. But अगर आपने 100 किताबें पढ़ी और उसमें से ऊपरी शो का पढ़ा है, तो उसमें आपको ये समझ में कहा ये अगर मुझे लिखना है करियर पे, तो there is certain thing, this is a way of writing, that is also an organizing way of writing it. वो भी होना ही चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं बोलना। That will also help you to being more organized. खाना बनाते समय you have to be very much organized. Similarly, that is also a way of learning. But something meaningful, you take it out from a market. अच्छी बुक्स मिलेगी आपको, क्रॉसवर्ड्स में मिलेगी। एक में सेंटर पॉइंट के सामने एक किताब है, और किताब को शॉप पर कॉर्नर में दे हैव वंडरफुल किताब के शो। I also have certain books if you want, if someone doesn't have it, you tell me, I'll give it to you. Okay. So यहाँ पे किसी को भी डाउट है हायरिंग प्रोसेस में, किसी को कोई और सजेशन है कुछ? नथिंग? एक्सपीरियंस के लिए भी रहता है। आई मीन हो सकता है जैसे कि बहुत सारे लोगों को TCS का MQT होता है, TCS का IIM है ना, राइट। तो ये सारी चीज़ें रहती है, बड़ी कंपनी जनरली रखती है। बिकॉज मैं वही बता रहा हूँ कि आपको फिल्टर आउट, उनको चाहिए कि बेसिकली उसका LR अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, राइट। और उसमें वो बाकी एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज़ें भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये दी थी कि दिस इज द राइट फिट फॉर दी फर्दर प्रोसेस, है ना। वो स्क्रीनिंग वहीं पे हो जाता होगा, तो नॉट नेसेसरी कि सिर्फ फ्रेशर के लिए रहेगा।
Any other question? और भी कोई आपका सजेशन कि किस टॉपिक पे आपको इंट्रो चाहिए, लर्निंग चाहिए? Academic, हाँ. Okay. How to fill that gap? Okay. Maybe to say like he is having some career gap in his education. What happens when you have a career gap? It's not wrong having it, but you should not show that I am blind in it. I have learned something. Most of the time, what happened when I initially used to go for a interview, for HR interview, so I used to, many people were saying कि हाँ तुम BPO में काम किए हो तो क्या सीखे हो? अगर BPO तो HR का एक्सपीरियंस नहीं होता है, BPO is BPO experience. So I used to say why you are not considering that experience as experience. So this is why we should consider it. It is not related to HR. I said I have a good telephonic etiquette. It will surely help me to utilize while having a recruitment, maybe connecting with someone that I know the international phonetics, A for alpha, B for bravo, C for Charlie, D for delta, E for echo. How I know it? I learned there. And it is very easy for me to connect any foreigner. I do speak with US guys, I speak with Europeans. And it is really helping me to do my career. I can able to understand their language because I can able to speak into their accent. You should consider it because I'm learning. Got it? So learning is important. What job you do, it's not important. You have a career gap, no issues. But that career gap should not be a career gap. It should be your learning experience. Okay? You should turn it. I have taken a gap for having learning lifetime experience. You should get it that way. Got it? Any other question? वो तो हम लोग थोड़ा सेपरेट सेशन करेंगे. This is just a kind of ice breaking session. मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हम सबसे घुल मिल जाए. इतने फ्रेंडली हो जाए कि आपको जो पर्सनल डाउट्स भी है regarding certain things that we cannot discuss in public, right? तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं regarding your career for the show, right? किसी का और कुछ क्वेश्चन है? Let's do one exercise here. Let's have a introduction of each, so that we can understand some of their where they are. Assessment हो जाएगा. So that next time whenever we will take them, we will. Are we having any WhatsApp group here for these people? Can you add us? We will have to create another group actually. That's okay. We have professional That's groups. okay. You can create Yeah, I'll another. create. Why? Because for 1 month, who has completed, we will give certain assignments also. These people need to complete that. Yes. Okay. Okay. So you have seen our introductions. Yes. Yeah. So you also need to give your introduction with a full of confidence. Okay. You explain, you tell about yourself. There should be a chronological order. Tell about yourself, your family background, your education experience, then experience currently what you're doing with, and your hobbies and interests. This much should be there in your this. So I'd like to start with the last person. Yes. And you have to speak in my voice, okay? So that I can able to. Yeah. Hello everyone. First of all, thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Tanushri Dote. I have completed my bachelor in computer science and engineering from Jhulelal Institute of Technology in 2023. Currently, I am working as a non-stack developer in PSK Technologies Private Limited. Since last 1 year, about my family background, my father is government servant, my mother is housewife, and my elder brother he is doing B.Pharm. That's it. Very good. So then there are 2 suggestions here. There you were using a lot of fillers. Fillers is what? So instead of saying that, you can delay your speech. Like let's say your name is. Tanushri Dote. So my name is Tanushri.
I took a little more time. So I got a chance to think about next sentence, right? So whenever you feel that I am going to use Tina, before that you should delay your speech and use some voice modulation. Voice modulation means तो कहीं पे आपको आवाज बढ़ाना है थोड़ा कम करना है. दिस इज अ टेक्निक. ये टेक्निक को टाइम लगेगा बट फिलर्स की जगह आप रुक जाए, कोई प्रॉब्लम, बट डोंट यूज फिलर्स. ओके, दैट्स फाइन. टुडे इज द फर्स्ट क्लास. I am going to tell you this kind of suggestion steps of a communication also that will help you to be a good public speaker as well as good while giving an interview. This type of mistake will not happen. Watch it please. Thank you. Hello guys, my name is Abhishek Tumsare. Currently I am working in PSK Technologies as a graphic designer and digital architect. And currently I am pursuing BCA. I am in third year. And my family background is father is working in government. Father is working in government servant. And mother is housewife. And my elder sister is she is doing BMS in doctor. Yeah. See, अभी क्या हुआ? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. You're so nervous. आपको भी देख के बात करो. ये तुम थोड़ा नर्वस ही चले जाएगा. एंड से द सेम टाइम कुछ नहीं. तुम अभी के अभी तुम ठीक हो जाओगे. बोलो बोलो जो बोला आपने. हाँ, yes, you have to make that. Yes. थोड़ा जोर से. As a graphic design digital marketer, and I am currently pursuing BCA here in New York. And my family background is father is working in housework. Elder sister is studying BMS. Okay. So got a difference? समझ में आया? You felt confident? आंखों में बातें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है? Good. जोर से राहुल को सुना आना चाहिए. You should able to get your name. Hello everyone, my name is Gaurav Mohadikar. I have completed my BCA in Kamlaneer Mahavidyalaya. And I am currently working at PSK Technology as a on-site developer. Since I have experience around 9 months. And my family background is my father is working at general stores. Okay. And my mother is housewife. Thank you. लास्ट में बोलना है. Thank you. Right. Hello everyone, my name is Pranav Rajesh Developper. I have completed my engineering from Priyadashini College of Engineering and I have completed computer science. Currently I am working as a merge-stack developer in PSK Technologies. And my family background is my father is a government officer and my mother is not. Thank you. Got it. Right. Good सुना है ना? afternoon, sir. My name is Sanjana Kashikar. I am born and brought up in Nagpur, Maharashtra, and I have completed my Bachelor's of Engineering from Guru Nanak Institute of Technology in Computer Science and Engineering. And currently I am working as a full-stack developer at PSK Technologies Private Limited. And coming to my family background, my father working as a private servant, and my mother is chef, and she's also working at She runs a cloud kitchen. not cloud kitchen, as working as a catering business. Very good. And my elder sister currently pursuing engineering from YCC College in Artificial Intelligence and Data Science. Very good. Thank you. Yeah. You have given a wonderful introduction. It's quite a little practice. When someone asks you about yourself, you need to be really sure what you're about to, right? So basically, this is how much you're confident while talking. आपको 1:30 बजे तक 2 बजे My family background. My father is working
in MNC as a driver. My mother is housewife and my brother is working in Lal Patala Bihar. Okay. That's it, sir. That's it is not a, you're restricting. Don't say that's it. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Great. Next. Here. Yeah, please. Good afternoon, everyone. My name is Ashmi Thakre. Currently, I am working PhD Technologies as a full stack developer and digital marketer. I have completed my BA from Rajiv Gandhi College of Engineering and Research in 2021. About my family background, my father is working in as a private sector. My mother is housewife, and about my brother, he is mental institution. You're so fast. It's okay. We need a lot of voice modulation, and while talking, you should have a speed. I'm not saying you should not have speed, but it should be controlled. So, My name is Khushi Diwan. Currently, I am working in PSP Technologies Private Limited IT company as a full stack developer, and I am a native of Nagpur city only. And I completed my graduation in BSc IT from Sadabar Rising Women's College. And talking about my family, we are three siblings. One is my sister, second is my younger brother, and my younger brother is in third class, and my younger sister is in second year. Thank you. when you're talking about your family background, and there are three more sequential statements are there, should be clear there. See, I believe like when we talk about our family, होता है बहुत सी बात कि हमारे दो से ज़्यादा भाई बहन रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं, कुछ बड़े रहते हैं, तो वी आर अनेबल टू से कुछ लोग क्या कहते हैं लिटिल ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, तो वो फॉर्म एटलीस्ट हम सबको बताना चाहिए. हम लोग करते थे यंगर यंगेस्ट, है ना. हाँ. सबसे छोटा वाला होता है उसको क्या कहेंगे यंगेस्ट, और जो सेकंड नंबर होगा उसको यंगर. तो ये हमें पता रहना चाहिए. तो ये बेसिक फॉर्म है जो हमें पता रहना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, राइट. बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, दैट हैव एनकाउंटर्ड. सिबलिंग्स का मतलब समझ में नहीं आता उनको. हाँ. तो ये सारी टर्म्स को हमको मतलब पता रहना चाहिए, जो बेसिक हमारे इंट्रोडक्शन के टाइम की जो होती है ना जेनेरिक टर्म्स, तो वो सारी चीज़ों के बारे में पता This रहना is चाहिए. expected. You see a lot of mobile now, right? So it is always, it comes from there only, right? So sibling, youngest. But see one thing, when this type of things you use now while talking in English, this is a what type of jewelry of language. You are using a right jewelry, and once you see someone who is more good of good jewelry wear and good clothes wear, you feel good, no? So similarly, language is like that. Articulation, and if you know how to place that, I tell you half of the work is done. The statement whatever you use in it, mostly that looks very good. Okay, preposition and or if else the whatever you say that then whatever. ये right जगह लगा दो आप, आपकी भाषा बड़ी सुंदर है. My name is Mansi Bhute. I am from Nagpur and I have recently completed graduation in BCCA at Nagpur University. Nagpur University and currently working as a counselor intern, facilitating a private clinic. And my family are 2 members, mother and me. My mother is a private job. Thank you. Little of voice modulation is required, voice training is required. Easy. Good afternoon, sir. My name is Amod Chaudhary. I am from Gonia. I have completed my Bachelor of Engineering in Computer Technology from Priyadarshini College of Engineering. I have completed my diploma in Polytechnic. Now I am currently working as a one-stack developer in a PSP Technologies. In my come with my background, familiar background. My father and mother and me. My hobbies is badminton, playing badminton. Good, very good. You very confident while speaking, but there are certain what you say the accent issue is there. I know you are from Gondia. My father is also from Gondia.
So basically, some words, some things we while speaking, we use our different pronunciation. So we should work on it. Like stool को stool बोलते हैं ना, scale को scale बोलते हैं. So similarly, I found some of them, and that looks very weird while you go for an interview. So you need to go on to once in accent training. I am not a trainer, so I am unable to. I think we should do that. So you can have discussion with the students. Please sit down. Good afternoon, sir. My name is Yogini Sahari. I have completed in my MCA, Master of Computer Application from Civil College from Pune. I am from Bangalore. We have 5 members in my family. My father is a farmer, my mother is a housewife, and my elder brother is a private job is private academy. My name is Savitra Nagpur. I am from Nagpur and I am a BA graduate student from Priyadashini Civil College of Engineering, and there are 5 members in my family. My father are a businessman and my mother is a housewife, and my sister is a bank manager, and I am currently working as a intern in a PSK technology. You said father is होता है, और ये गलती क्यों होता है मैं बताता हूँ. और पर पापा फादर आते घर में भी हम आओ जाओ करते हैं, सभी अपने पापा कुटे के लिए बाबा आओ करते, मम्मी को आदत रहती है आई जो कुटे के लिए टाइम दिया ऐसा हो. उसी की वजह से उनके लिए आदर आरती के चक्कर में आर निकल जाता, ही के चक्कर में दे निकलता है उसमें, है ना. यू हैव टू वो करता है. Good morning, sir. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Shubhangi Nijare. I am from Bandara, but currently living in Nagpur. I have completed my graduation from Islamic in computer technology. Currently, I am working at PSK Technologies Private Limited as a one-step developer. Coming to my family background, my father is farmer, my mother is housewife, and my brother is preparing for Indian Army. Thank you. Wonderful. Nice interview. Well done. Good afternoon, sir. My name is Ananya Suri. I did graduation from St. Francis College, BSc in Computer Science, and before coming here, I was also a teacher and I did accountant job also. And currently, I am working at PSK Technologies as intern. And coming to my family background, my father is a teacher and my mom is a housewife, and my brother is currently pursuing his Wonderful. Nice. First of all, thank you for giving me the opportunity. My name is Abhimanyu Mishra. I am currently working as a PSK Technology Private Limited as an intern, and digital marketing, graphic designing as completed. See, one more thing, please again, just in between. You should have your, yourself dialogue ready for 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes and 2 hours. 2 घंटे तक हम खुद के बारे में बोल सकने चाहिए, इतना हमारे पास हमारा खुद का कंटेंट होना चाहिए. क्लियर? यू आपको कौन जानता है सबसे ज़्यादा? खुद. ठीक है, तो यू शुड हैव योर डायलॉग रेडी. आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या क्या मैं इंक्लूड कर सकता हूँ बोलते समय, व्हाट आई शुड हैव. जैसे अभी क्या हुआ, आपको शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हुए, शॉर्ट ऑफ सेंटेंस हुए, तो ये जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये लगा तो बड़ा असर लगेगा. इसके सामने आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कॉन्फिडेंट. ठीक है. सुना आ रहा है ना? Good afternoon, sir. Yes, this is a voice. My name is Mukunda Bede. Thank you for giving me this opportunity. Currently I'm working in PSK Technology as a website developer.
Now, these are tasks to you and even to you. Both of you plug in between. So, you should write almost 2 pages about yourself and show it to me. Next Wednesday, whenever I come, I'm going to ask you. मैं खुद नहीं आऊँगा, मैं तो भूल जाऊँगा. It's your duty, you should come in. Right? Who is going to take the responsibility when we go? Huh? Thank you. Can I get a Please. Good afternoon, sir. My name is Yogita Bhute. Currently, I'm working as a nurse at Development PSK Technology, and I have hands-on practice on front-end and back-end. And coming to my education background, I have done MCA from Jaipur University and BCA from Nagpur University. And about my family background, my father is government servant, and my mother is housewife, and my younger brother is preparing for engineering. And Still, you need to write a question. Good afternoon, sir. My name is Sonam Kutreja. I am from Vadsa. From the last 4 years, I am living in Nagpur, and I have completed my graduation from City Premier College, Nagpur, and I am currently pursuing my master's degree from GHI SOD College, Amravati University, and currently I am working as an intern at PSK Technology. And coming to my family background, my father is businessman, and my mother is housewife, and my younger brother is living in Pune and completing his CH. Wonderful. Good to Vadsa. From such a small town you are, and still you have a good English and good communication. Good. Good morning, sir. My name is Sanjay Krishna. I am from Nagpur and I have completed my BSc Computer Science from MP University College, and I am working as an intern in PSK Technologies. And coming to my family background, my father is a salesman at Newton Mall, and my mother used to teach as a She was a teacher. She was a teacher at home. She was a home tutor. Home tutor, and due to some personal reason, She left. she left and now she is a housewife. And my younger brother is doing engineering in Polytechnic at Southern. And my hobbies, I used to listen music whenever I feel depressed or any situation like There are some surnames. If you tell like your surname, इसका अगर ये सरनेम बताओ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं ये भी हो जाता है it happens so there is a legacy with certain words certain Savarkar जैसे मुझे एक लगता है पता नहीं क्यों if some Savarkar if I see somebody तो मुझे ना I do expect more from him. I don't know why. But it happens. It's a human phenomenon, right? So similarly with discussion, I find this is a thing. So you have to be very sharp when you talk. So I will good afternoon, sir. My name is Gauri Nau. Currently, I am working as intern at PSK Technologies Private Limited as a full-stack developer. I have completed bachelor's degree in computer science and engineering. I am 2024 batch pass out student. About my family, my father is a businessman and my mother is housewife, and my elder sister is teacher. And my hobbies are watching movies and listening music. very good. Good afternoon, sir. I am Aman Mangale. I have completed my diploma from Nagpur, Nagpur. Currently, I am working at PSK Technology as a full-stack developer. And about my family, in my family there are 4 members: me, my younger brother, and my brother and my mom. So my brother doing job at Ascent as a medical coder, and my mother working at NMC. Okay. That's okay. My hobbies are
In my free time, I listen music and scroll Google. अभी क्या हुआ ना तुम जब बात कर रहे थे आई थॉट एट दिस लेवल एक आपके पास प्रॉम्प्टर है जैसे देख के क्या बता रहे हो ऐसे ऐसे बता रहे हो ऐसे लग रहा है यहाँ पर आपने प्रॉम्प्टर लगा है जो था टीवी प्रॉम्प्टर होता है वो सामने आपके यहाँ था तो ऐसे नहीं मुझे दूर पा Reno College, Reno College. Where is Pasar? I'm a graduate of Reno College in Academy University. I'm currently working as a full-stack developer. I'm currently working as PSK technology. हाँ बोलो ना My family background is come to like my family background. My father is businessman, my mother is housewife, and my younger sister is IT company PHP developer. See, everything is good. Why people laugh? ये बहुत funny है क्या? See, what I believe, you are using a lot of actions. So when it is not required, you should not. Okay. हम action में बात हो सकती है. Don't give a lot of expressions. Expressions देना ही है. जब मैं बात कर रहा हूँ, I have to give an expression. Control. ठीक है. Then only you look very controlled and strong person. Practice it. एक को mirror ले लो करके बड़ा सकते हैं. Good afternoon, sir. My name is Vijay Mukherjee. I have completed a master's degree of Geography and Technology. Now I am studying Internet Technology and I am working for Internet. I can see you better stuff. I don't know why. And maybe a relative influence. Very short. You have to increase the length of speaking. Good afternoon, sir. My name is Dhanashri. I did my graduation BSc and after that I did my post-graduation engineering from Ambedkar College. In my family background, we are 4 members. My father was in the private sector and my mother is national scientist. My sister is a cake founder and my hobbies are listening to music and sketching. Wonderful. Nice. तो confidently बता रहे हैं. Good morning. Good afternoon, sir. My name is Maheshwari Inde. I am from Nagpur and I have got my Bachelor of Degree in BSc IT from Reno College. And coming about my family background, I live in a nuclear family. My father is a retired person and my mother is a housewife and I have an elder brother. He was pursuing their MSc Agriculture from Bhopal. And my hobbies are doing craft. You were getting blank. You understood what you wanted to speak. ये नहीं होना चाहिए. So take a gap. That gap should not totally be there. It should be continuous. Good afternoon, sir. My name is Devanshu Gori. And I recently done my graduation from GTech Factory of Engineering. And I done my 6-month college internship from Protect Private Limited. And I am currently working as full-stack developer at PS Technologies. Talking about my family, my father is government servant and my mother is homemaker. And my brother is currently working at Mahindra Technologies, Tech Mahindra as a technical operator. Now talking about my hobbies, I love singing and I love also drawing and I am a professional singer. Wonderful. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Sonali Lope. I basically from Nagpur, sir. It was a capital of Vidarbha. And I am currently completed my bachelor's degree from Sadara Raisoni Women's College, SNDT University, Mumbai. Coming to my family background, we have 5 family members. My father is a businessman and my brother is pursuing MBA right now. I am actively working on my overcoming my nervousness when I meet new people. And
quite interesting. First, and that is a wrong information. Nagpur is not a capital of Vidarbha. It's a no, it's not a capital. Vidarbha is not a state. Vidarbha is a part of Maharashtra. This is a winter capital of Maharashtra. Got it? So don't pass wrong information in that way. Then you talk about nervousness and all. You need not to tell a negative thing into the introduction. You should have an approach maybe अच्छा ही बताओ ये मुझे Thanks, sir. Good afternoon, sir. My name is Pranjali Chaudhary. I have completed my graduation from JS Raisuli College of Engineering, Nagpur, and I'm born and brought up in Nagpur. And now I'm currently working as a one-step developer at PSK Technologies. Coming to my family background, I have 4 members in my family. My father is businessman, my mother is homemaker, and my brother is pursuing BBA from JS Raisuli. Thank you. Wonderful. Good afternoon, sir. My name is Shubham and I have completed my graduation from National Power Training Institute, Nagpur, in the stream of Power Engineering. After that, I have completed Diploma in Advanced Computing from Sandeep Institute, Karat. And coming to my family, English and nuclear family consisting of 4 members. My father is retired government servant, my mother is professor, and I have a younger brother. He is manager at Factory India Private Limited. And coming to my hobbies, I love music and currently I am cultivating a habit of reading books. Wonderful. Nice. There are some common mistakes most of the people have done. While talking, what to do with hands? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. कोई लोग जेब में डालते हैं, कोई लोग ऐसा रखते हैं, कोई लोग ऐसा रखते हैं. This is also wrong. You should keep it free while talking. She was having good hand gesture. She was having good hand gesture. One person there, she was right. It's good. If you don't want to move your hand, but still you want to look confident, you should do that. Okay. I think he is that. Someone here also. So that is how your hand should be. Now, one more suggestion for all of you: you should have ready introduction of yourself, where you should have for 2 minutes, you should have for 5 minutes, you should have for half an hour, 2 hours also. अगर सामने वाले को और बताओ ऐसा क्या हो सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल. You should know yourself. Write it on a paper. You can get more on this. Okay? Yes. Hope my all suggestions, would you like it? Yes. And you are going to implement it. Huh? Good. Like one more input. How many of you try to think in your mother language or Hindi before saying something? कितने लोग पहले सोचते हैं उसमें मदर लैंग्वेज में सोचते हैं और फिर बाद में कितने लोग ऐसा करते हैं? I do that. Basically, you are trying to, before saying something, you are trying to frame the sentence in your own language, हिंदी या फिर मदर लैंग्वेज, और उसके बाद आप जो है बोलते हो. कितने लोग ऐसा करते हैं? मतलब जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ बोली रहती है तो पहले पूरा फ्रेम करते हैं और उसके बाद बोलते हैं. लेकिन उसमें होता क्या है, तब गलत नहीं है, बट आप टाइम बाय कर ले रहे हो, गुड, बट फिर आप जब बोल रहे हो तो वो लगना चाहिए, कंप्लीट लगना चाहिए. बहुत सी बार होता है ना कि बोलते बोलते फिर हमारा मराठी या फिर हिंदी में एक वर्ड साथ साथ में निकल जाता है. तो वो होता है तब जब हम लोग नीचे बैक ऑफ द माइंड सोच रहे हैं हमारी मदर लैंग्वेज, तो वो उसमें थोड़ा सा अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी है, मैं भी जनरली करता हूँ, डिफिकल्ट होता है, सोचना भी इंग्लिश में ही है. बिकॉज हम जब तक खुद को ब्रेन को ये हैमर नहीं करेंगे भाई मुझे इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही बोलना है, तब तक वो नहीं होगा. दोनों चीज़ एक साथ नहीं होंगी. आप सोच रहे हो मराठी में और फिर इंग्लिश में बोल रहे हो तो पास ही नहीं हो रहा आपका मैसेज. ठीक है, तो ये भी आदतें धीरे धीरे बनानी है हमें, कि जो आप सबको थोड़ा सा ध्यान रखना. इसमें क्या है, अभी देखिए हम बहुत बार क्या होता है, अंग्रेजी में बात करते हैं या फिर वॉट एवर विच लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन पैरामीटर्स. अगर हम मराठी में बात करते हैं तो मराठी में ना यू कैन यूज दैट 3 वर्ड्स. आप सब्जेक्ट पहले बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट बाद में वर्ड, कभी उसका कोई डिफरेंस इश्यूज नहीं है. माझं नाव अर्पित, अर्पित माझं नाव, अर्पित माझं नाव, तीनों में मीनिंग सेम ही होता है, बट इंग्लिश इज नॉट.
Got it? And English का एक है कि rhythm है. English is one of the rhythmic language. So whenever you talk English, that rhythm should get completed. यदि आपका rhythm complete नहीं हो रहा है तो इसमें इसका मतलब आपको कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक. हमें ये आदत लगी है हमारे माइंड को, यदि आप अंग्रेजी में सोचते हैं और या फिर हम अंग्रेजी में बात करते समय अगर रिदम कंप्लीट नहीं हो रहा है, यू विल फाइंड योर ओन मिस्टेक और इससे आपका अंग्रेजी बहुत अच्छा होगा. So that's why you should train your brain to think in that language. So while if I want to speak in English, so I should think in English. Got it? Similarly, if I want to write something in Marathi, I should be able to think in Marathi. मेरा बहुत मानना ये है, भाषा तीनों की भाषा में से अंग्रेजी, हिंदी और आपकी मदर, और तीनों की भाषा वही उच्चतम लेवल की आनी चाहिए जितना हम सोचते हैं अंग्रेजी लानी चाहिए. ठीक है. यदि मुझे किसी ने बोला है कि मुझे हिंदी में बात करते आना चाहिए, तो मैं बिना हैसल के, बिना इश्यूज के पूरे शब्द में हिंदी में बोल सकूँ और पूरा मैं कंप्लीट कर सकूँ. ये मेरा एक ये तरीका होना चाहिए कोई भाषा सीखने का. मराठी का भी हम अलाउ करते हैं मराठी या अंग्रेजी में, मराठी या हिंदी में टू यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. यू हैव टू यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, है ना. इससे क्या होता है, अंग्रेजी तो अच्छा हो जाएगा तो बाकी जो भाषा नहीं होगी. तो ये भी ट्राई करिए. बाकी भी भाषा इतनी भी इम्पोर्टेंट है. टू कनेक्ट समबडी, दिस मराठी और इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज है. समझे कोई तो भी इसमें कोई करेगा ना, कोई यूएस में रहेगा, यूरोप में रहेगा, वहाँ पे यदि आपको कोई आपका नागपुर का बंदा मिल जाए, इसलिए बल्कि स्पीकिंग दैट लैंग्वेज अच्छा लगता है ना. दिस इज आवर स्किल्स. ओके. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट, व्हाटएवर वी वांटेड टू टीच यू, हमने आपको आज प्रेजेंटेशन में वो बता दिया. राहुल हैज एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. आई ऑल्सो हैव ब्रीफ यू टुडे all about ice breaking session we did. So from next session we will going to have a like from tomorrow onwards we will have a 20 minutes of session for each person. तो वो भी हम एक करेंगे. कुछ और है आपका सजेशन पूरे पता है? और जो है सर So मैं जनरली बहुत ट्राई करता हूँ कि हमारी इंग्लिश बहुत ट्राई करता बात करता हूँ, बट जब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ इंग्लिश में तो बहुत सारी जल्दी बात होती है, जल्दी नहीं इंग्लिश बात करते. हाँ, इसका यही कारण है हमारा प्रैक्टिस है. हम देखो हमें ऐसा मराठी आती क्यों नहीं होता, क्योंकि ये हमारा बहुत प्रैक्टिस है. हम घर में बहुत बात करते हैं. एक साधारण एक इंसान दिन में, लड़का मेल, ही स्पीक 1600 वर्ड्स, 1600 शब्द बोल सकते, उसमें उसकी कैपेसिटी होती है. एक औरत की कैपेसिटी, फीमेल कैपेसिटी मोर, शी हैज 3,000 to 5,000 वर्ड्स इन स्पीकिंग. ठीक है. रिसर्च आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. एक बात देखना, लड़कियाँ बहुत जल्दी भाषा सीखती हैं लड़कों से. ये तो अग्री करेंगे. क्यों? क्योंकि यही रीज़न समझ में आ रहा है. इसी दौरान तो हम दिन रोज़ हमारा प्रैक्टिस किसका हो रहा है, हिंदी या मराठी का, जो हम 1600-1800 वर्ड रोज बोल रहे हैं. हमें अभी क्या करना है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी है. यही 1600 मत बोलिए, 800 तो वर्ड अंग्रेजी में बोलिए. जब यदि आप 800 वर्ड्स बोलेंगे तो भी आपको 800 वर्ड्स आपकी यूज़ होंगे. एक और देखिए दूसरा इसमें और बताऊँगा मैं, कोई भी, मैं भी अंग्रेजी बोल रहा हूँ या फिर मैं सब जो लिखता भी हूँ, एक भाषा बोलने के लिए आपको कम से कम 8,000 वर्ड आने चाहिए उस भाषा को, तो आप अच्छी भाषा बोल सकते हैं. मराठी में भी हम एक 8,000 वर्ड ही बोलते हैं. मैं समझो कोई लिटरेचर में काम कर रहा हूँ, मैं अगर कुछ ना कुछ किताब लिखता हूँ या मैं कविताएँ लिखता हूँ या फिर यहाँ पे मैं यूनिक वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ. ये मैं कब कर सकता हूँ, जब मेरा जो खुद का वोकैबुलरी है, खुद का जो डिक्शनरी है, पर्सनल मराठी का डिक्शनरी, इट इज़ मोर देन 8,000. अगर मेरा 12-15 हज़ार होगा क्या देखो मुझे लगता है. मराठी का तो एटलीस्ट 15,000 वर्ड्स का मेरा डिक्शनरी है, बट मैं रोज़मर्रा में 15,000 वर्ड ही यूज़ करूँ ना,
किलोमीटर ज़्यादा वो मैंने की करा मैंने बटन he will not understand this and I just don't want to use it. That means very dramatic also. Marathi is not a dramatic language, right? So I will then button da, है ना? This is the way of language learning, okay? इसके लिए लर्निंग के लिए पढ़ना और प्रैक्टिस करना ये दोनों ही हैं. आप पढ़ो, भाषा पढ़िए और यूज़ करिए वो words. बात करिए किससे. दिन में 800 शब्द अगर आपने मुंह से निकाल लिए, I tell you in next 3 minutes you will be ready to speak good English. Got it? Yes, sir. Okay. Shall we wrap up? You all have lunch break also. Yes, sir. Okay. Anyone wants to summarize this session from you guys? What we have done today? Anyone from you? Ready? या तो मैं उठाऊंगा. हाँ, ठीक है. So first of all, TIF, which is technical skill, behavioral skill and attitude. ये चीज़ें होती है जो एक HR जो है आगे वाले पर्सन में देखता है. ये सर्विस का है. उसके बाद राहुल सर ने कुछ 6 चीज़ें बताई कि लाइक पर्सनल इंटरव्यू प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन और ऐसी 6 चीज़ें याद नहीं like shortlisting, aptitude writing, psychometric test and group discussion, personal interview. ये चीज़ें होती हैं जो खुद में इम्प्रूवमेंट करें तो हम शायद से एक अच्छी जॉब ले सकते हैं. और उसके बाद फिर जो था इंट्रोडक्शन हुआ सबका, जिसमें सबने काफ़ी अच्छा किया. थैंक यू. So, okay, today we are ending this class. Probably tomorrow at 3:30. 3:00. I'll just see the schedule and accordingly we'll share you one link. आप ही सब देख लेंगे. I have created a group. हाँ, तो एक लैपटॉप को आपको अरेंज करना पड़ेगा. यानी हम एक टाइम पे एक या 2 मैक्सिमम करते हैं. ठीक है. There are 30 people. Mostly once जिस दिन ज़्यादा टाइम रहेगा हम 2 करेंगे. बट मुझे लगता है 20 मिनट तो एक दिन को आपको देना ही पड़ेगा. ठीक है. तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड. ठीक है. आप अपना रिज्यूमे रेडी करके रखिए. अभी आपका ट्रेनिंग होने का रिज्यूमे रेडी तो भी आपके पास एक रेडी रखिए. नेक्स्ट इसमें हमें इजी जाएगा आपको वो सेक्शन में. ठीक है. थोड़ा आप भी रिसर्च करेंगे, हम भी रिसर्च करेंगे, हम भी बताएंगे कुछ, तो हम बहुत जल्दी हमारे ऑब्जेक्टिव पे पहुँचेंगे. ठीक है. ओके. Yes, sir. ऑल द बेस्ट.